Hello, UPSC aspirants. How are you? I welcome you all to IS Ment Rise with Right Mentor. Today, in this video, we are going to discuss another strategy which will help you clear your prelims examination, which will help you apply your knowledge into the examination so that you can make maximum questions correct. Right? So, this strategy is by the name of process of elimination. अब देखो यहां पे भी एक एलिमिनेशन है, लेकिन अब ये एलिमिनेशन के अंदर थोड़े से डिफरेंट टाइप का एलिमिनेशन है. एलिमिनेशन बाय कॉन्टेक्स्ट और वर्ड एसोसिएशन, यानी कि जो भी क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ड की एसोसिएशन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो. समझते हैं कि क्या है ये. The process of elimination by context or word association is a useful strategy when you are unsure of the exact answer. देखिए, answer is given in front of our eyes in each and every question. Since there are 4 options, out of 4 options, 1 is definitely correct and 3 are wrong. So, whatever techniques we are learning them to reach to that correct option. So here we are also trying to learn a technique which will help us in this, right? Certain terms or phrases are commonly associated with specific concepts, historical events, regions, or figures. By recognizing these associations or understanding the broader context of the topic, you can logically eliminate wrong options and narrow down your choices. See, what happens is कि whatever question comes, there are certain specific terms which are always used in that context only. So in this technique, we have to identify that thing only. ठीक है, अब ये कैसे होगा ये हम आगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली कैसे इन कॉन्टेक्स्ट में उस उन टर्म्स को पहचानना है और कैसे अपने सही आंसर की तरफ जाना है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि शुरू करते हैं सीधा. हाउ टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. यहां समझते हैं देयर आर फ्यू स्टेप्स विच विल बी इन्वॉल्व अंडर दिस टेक्निक. आइडेंटिफाई कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस. here you also have to here you have to identify the keywords given in the question. ठीक है, look for terms that hint at specific associations. These could be key events, figures, regions, or concepts. ठीक है, next step is analyze the context. Now first we identified the keywords. Now after identifying the keywords, we will analyze the context of the question. In what context the question is being framed. Consider the broader context of the question. Is it related to history, geography, economics, or environment? Think about how certain terms might fit into that context. See, what happens is when we study a subject, while studying that, there are certain terminology, certain keywords which are used in that subject, right? So our approach would be to identify that thing first. Analyze the context, right? First we analyze the context, then we, now in the next step, match keywords to their relevant concepts. In first step, we identify keywords. In second step, we identify the context. Now in the third step, we will try to match them. ठीक है, यहां पे हम उन कीवर्ड्स को
उस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे. यूज योर जनरल नॉलेज टू मैच सर्टेन टर्म्स विद देयर एसोसिएटेड फील्ड्स. ठीक है. पीपल और इवेंट्स. इवन इफ you don't know the exact answer, this step can help eliminate incorrect options. Eliminate options that don't match the context. ठीक है. फोर्थ स्टेप में उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है which doesn't fit into the context. Right? So now let's understand this technique through some example questions and we will try to see how this technique is applied. Let us see. First question. With reference to India's culture, consider the following pairs. First is, the context is culture. ठीक है, art and culture. Now, we will see some keywords. We will focus on the keywords that are being given in the question, how they are matching with the context. Okay, so let us see. First, it is given Chapcharkut and state is given Mizoram. Next is Khongjom Parv. State is given Manipur. Third is Thangta. State is given Sikkim. Now see, अब यहां पे ये चीज कैसे अप्लाई होगी. अगर आप ये देखो, इफ यू अप्लाई योर जनरल नॉलेज ओवर हियर, ये जो वर्ड है छापछारकुट, ये आपको क्या लग रहा है कि ये मिजोरम से कहीं रिलेटेड हो सकता है? इन द सेंस, इसको कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज की तरह समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू इट्स लैंग्वेज. ठीक है. द वर्ड छापछारकुट is clearly understood that yes, it is somewhere associated to Mizoram. ठीक है. हमने आर्ट एंड कल्चर में जब आर्ट एंड कल्चर को पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम हमने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फेस्टिवल्स को, अलग अलग उनके कल्चर को स्टडी किया. नाउ व्हेन वी वर स्टडिंग दैट, हमने उनके अंदर यूज होने वाली जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज है, जो नाम है उन कल्चर्स के, उन कल्चर के नाम को हमने स्टेट के साथ रिलेट किया. हमने बहुत सारे पढ़े, हो सकता है जो एग्जाम में आया हो वो हमने ना पढ़ा हो, लेकिन बाकी तो पढ़े हैं. उन बाकी के पढ़े होने से हमें ये तो आइडिया लग रहा है ना कि ये कौन से स्टेट का हो सकता है, क्योंकि हमने उस स्टेट के और भी कई सारे ऐसे नाम देखे हैं. तो उन नामों से कहीं ना कहीं रिलेट करके हम ये इजीली समझ पाएंगे कि ये वर्ड कौन से स्टेट से रिलेटेड है. ठीक है ना. तो बस वही चीज यहां पे यूज करी है. इसी तरह छापछारकुट जो है, जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि इट इज रिलेटेड टू मिजोरम. नेक्स्ट इज खोंगजोम पर्व. इंपॉर्टेंट वर्ड इज खोंगजोम. यस, इट इज रिलेटेड टू मणिपुर by identifying the similar words which are being used for Manipur for its other cultures when we were studying art and culture, right? Third is Thangta. Now, Thangta is not related to Sikkim. खोंगजोम थांगता आपको एक जैसे वर्ड नहीं लग रहे? तो थांगता जो है ये सिक्किम से तो नहीं है, ये मणिपुर से है. ठीक है. तो हम यहां पे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस, दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज रॉन्ग. नाउ लेट्स सी इन द ऑप्शंस ऑल्सो. इफ वी मार्क 3 एज रॉन्ग, तो
हमने 2 ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट कर लिए. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस. एंड आउट ऑफ दैट, अगर हमें ये सही लग रहा है तो हमें सही ये कहाँ से आता है? ये हमारी इंट्यूशन से आता है. और इंट्यूशन कहाँ से आती है? बाय जनरल नॉलेज, बाय नॉलेज. और नॉलेज कहाँ से आई? जब हम एग्जाम को इसको प्रिपेयर कर रहे थे, जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे. एट दैट टाइम वी स्टडीड आर्ट एंड कल्चर, एंड वी स्टडीड दी आर्ट एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. और हर स्टेट के अपने अपने नाम थे. ठीक है ना? वहीं से हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया. सो द आंसर इज 1 and 2 ओनली. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements best describes the term social cost of carbon? अब देखो यहां पे 2 टर्म्स हैं. वन इज सोशल, इनफैक्ट यहां 3 टर्म्स हैं. अनदर इज कोस्ट, थर्ड टर्म इज कार्बन. सोशल मीन्स something which is impacting the society. Cost means something which is negative, something which is negatively impacting. And carbon, carbon means carbon emission, means pollution. या फिर क्या हो सकता है? टेम्परेचर राइज, है ना, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि CO2, या ये हो सकती है. अब इस टर्म से हमें ये 3 चीजें समझ में आती हैं. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड वी विल ट्राई टू सी कि ऑप्शंस में ये चीज कहां, किस ऑप्शन से ये चीज निकल के आ रही है. इट इज अ मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन वेलफेयर. अब देखो यहां पे हमें तीनों टर्म्स को मैच करना है. फर्स्ट इज सोसाइटी, सेकेंड इज नेगेटिवली इंपैक्टिंग, थर्ड इज pollution or climate change or whatever, right? Impact on climate change, yes, it is matching. Human welfare, yes, it is matching. But this is not matching. So I will mark this option wrong. Now let's come to the second option. It is a measure of the long-term damage done by tons of CO2 emissions in a given year. First term, long-term damage. Yes, it is covered. CO2 emissions. Yes, it is also covered. Now, long-term damage to what? Obviously, to the society. So, I'll hold this option. This option seems correct to me. I'll hold this option. Next is, it is a requirement for companies to pay for the carbon they emit. Only one term is matching. It is a tax on the production of fossil fuels. Nothing is matching. So, all the 3 options have got eliminated. My final answer is B. ठीक है ना? कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स में से कॉन्टेक्स्ट उसको मैच किया. कीवर्ड्स सोसाइटी, नेगेटिवली इंपैक्टिंग, CO2. कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो बस उसी चीज को आइडेंटिफाई किया. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है? फर्स्ट इज कुर्द. कुर्द फ्रॉम म्यांमार. नो. कुर्द वर्ड हमने न्यूज में भी बहुत सुना है. ठीक है. कुर्द वर्ड is used, is related to somewhere Middle East. Right? Kurd word is somewhere related to Middle East. So, according to that, this option is wrong.
Now, Madheshi from Nepal. We all know about it. Next is Rohingya. Although हमें इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज रोहिंग्या के बारे में हम इतना पढ़ लेते हैं, सिक्योरिटी में भी, आईआर में भी, करंट अफेयर्स में भी हम इतना रोहिंग्यास के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें रटा हुआ है कि दे आर नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, रादर दे आर फ्रॉम म्यांमार, राइट? So this option is also wrong. The final answer we left with 1, and that is 2 only. ठीक है? Now let's move to the next question. With reference to the history of ancient India, Bhavbhuti, Hastimalla, Shemeshwara were famous. ये क्या थे? देखो, नाम से हमें इतना तो पता लग रहा है कि दे आर ह्यूमंस. If they are humans, let's eliminate. Okay, all 4 options are related to humans only, so nothing is being eliminated. Now, when we were preparing for art and culture, ancient literature, the Sanskrit literature, we definitely would have came to this word, Bhavbhuti. ठीक है, भावभूति कहीं ना कहीं हमें, वैसे भी हमें सुनने में भी कहीं ना कहीं ये हमें संस्कृत या कहीं ना कहीं हिंदी से रिलेटेड नजर आ रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया में ऐसे नाम होते ही नहीं. ठीक है, जनरली ऐसे नाम होते ही नहीं साउथ इंडिया में, है नॉर्थ इंडिया का ही नाम. तो कहीं ना कहीं हमें ये संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड आ रहा है, और पूछा है एंशिएंट इंडिया. ठीक है ना? तो यहां पे हम भावभूति को अगर हम माने तो जैन मॉन्क्स तो नहीं हो सकते, टेम्पल आर्किटेक्ट्स भी नहीं हो सकते, बचे 2. अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि भावभूति इज अ संस्कृत प्ले राइट. प्ले राइट मीन्स, प्ले राइट किनको बोलते हैं? जो प्लेज लिखते हैं, जो ड्रामा लिखते हैं, जो स्टेज शोज लिखते हैं. ठीक है ना? तो एक ही ऑप्शन बचता है. अब ये हमें जनरल नॉलेज से पता होना चाहिए कि भावभूति इज अ प्ले राइट, इज अ संस्कृत प्ले राइट, राइट? सो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, अगर आपको नहीं भी पता था कि भावभूति संस्कृत के प्ले राइट हैं, even though we were able to eliminate 2 options and we were left with 2 only options, है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describes the term circular economy? Context is economy and keyword is circular. First keyword is circular, second keyword is economy. Means, अब इसके नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? इसके नाम से हमें समझ में ये आ रहा है कि इन इकोनॉमी समथिंग विच इज सर्कुलर, समथिंग विच इज रिवॉल्विंग अराउंड. ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या दिया ऑप्शंस में. अ लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ ट्रेड वेयर करेंसीज कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएट. क्या यहां पे कुछ भी ऐसा सर्कुलर टाइप कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड बनता नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. एन इकोनॉमिक मॉडल इन विच प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, डिस्पोज्ड एंड रिप्लेस्ड frequently. It seems to be correct. Hold it. An economic model aimed at reducing waste and making the most of resources.
यहां पे भी सर्कल बन रहा है, so this option also seems correct. Hold it. A global economy where the supply and demand of goods constantly fluctuate. यहां कोई सर्कल नहीं बन रहा, तो क्या निकालेंगे? अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, बी और सी। हम इस टेक्निक से दो ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमें फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ना है और करेक्ट आंसर निकालना है। फॉर दैट हाउ विल थिंक इज, फर्स्ट इज यूज्ड, डिस्पोज्ड एंड रिप्लेस। Second is aim at reducing waste and making the most of resources. Now, whenever you have to choose, see, in UPSC prelims, the questions which are asked are generally not narrow based. They are broad based questions. मीन्स वहां पे कोई किसी छोटी सी चीज के बारे में नहीं पूछा होता, रादर किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में पूछा है, किसी बहुत बड़े एम के बारे में पूछा होता है। और इसके साथ साथ यूपीएससी पॉजिटिव चीजों को पूछती है, नेगेटिव चीजों को बहुत कम पूछती है, यूपीएससी पॉजिटिव चीजों को पूछती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रॉड क्या है। देखिए ये दोनों ब्रॉड है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से ग्रेटर गुड की तरफ कौन जा रहा है। यूज, डिस्पोज, रिप्लेस फ्रीक्वेंटली, हियर इट इज लीडिंग टू व्हाट? इट इज लीडिंग टू वेस्ट, वेस्ट जनरेशन। ठीक है ना? यहां पे क्या हो रहा है? वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा है। यूज किया, डिस्पोज किया, फिर नया ले लिया, ये सर्कल जरूर घूम रहा है, लेकिन वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा है। और थर्ड ऑप्शन में reducing waste and making the most of resources means whatever product we have purchased, we will try to use it as much as possible so that कि waste generate ना हो। थर्ड ऑप्शन जो है यहां पे कहीं ना कहीं एक ग्रेटर गुड के बारे में भी बात करी गई है, तो आई विल गो विद थर्ड ऑप्शन, राइट। इस तरह से आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी होती है। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में ना बेटा आपको एग्जाम समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। अगर आप एग्जाम को समझेंगे तो ही एग्जाम आपको समझेगा। इस एग्जाम को लाइटली मत लो। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बना ही एलिमिनेशन के लिए है कि जितना हो सके उतना कैंडिडेट्स को इस एग्जाम से बाहर करो। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस एग्जाम को समझना। पहले एग्जाम को समझो, फिर इसकी प्रिपरेशन करो। प्लीज गो थ्रू दी होल प्लेलिस्ट। आप एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इस पूरी प्लेलिस्ट से, और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। इट विल हार्डली टेक यूर ओनली 2 days। आप 2 दिन के अंदर इस पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जब प्रिपेयर करेंगे तो आपकी विजन एकदम क्लियर होगी कि व्हाट आई हैव टू प्रिपेयर, हाउ आई हैव टू प्रिपेयर, हाउ मच आई हैव टू प्रिपेयर, और प्रैक्टिस किसको करना है, कितना करना है, ये सब आपको इनसे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस में जब टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो उन टेस्ट सीरीज में आपको किन चीजों पे फोकस करना है, आपको इन टेक्निक्स के ऊपर मास्टरी करनी है। ये चीजें आपको क्लियर होंगी तब जब आपको पूरे एग्जाम को समझेंगे आप। और देखिए अभी मंथ चल रहा है नवंबर, अभी नवंबर दिसंबर का टाइम है। प्लीज 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 नवंबर दिसंबर के टाइम में अपने प्रीलिम्स को मत शुरू करना प्रिपेयर करने के लिए। आगे आपको 5 महीने मिलेंगे फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ। यू विल बी गेटिंग 5 months to prepare the prelims examination, which is more than enough. But the condition is, if you know how to prepare, if you know the right strategy, if you really understand the exam, then 5 months are more than enough to prepare this examination. Please अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो और इन चीज़ों को समझो। देखिए मार्केट में मैं जानता हूँ नवंबर से ही
क्रैश कोर्सेज की बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है कि जितना जल्दी हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे उतने ज्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे, उतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, उतनी ज्यादा फीस आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फीस कमानी गलत बात है, मैं भी कमाने के लिए बैठा हूं, ठीक है, लेकिन देखिए आप कमाइए, कमाना बुरा नहीं है, हर आदमी यहाँ इस धरती पे कमाने आया है, लेकिन उस कमाई के साथ साथ किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप अच्छा करिए, आप अच्छी चीज देने की कोशिश करिए, फिर कमाइए, कोई नहीं रोकता। बट प्लीज नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्सेज के पीछे मत भागना। आप हो सकता है अपना ये अटेम्प्ट खो दें, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो कंटेंट बन सकता है, ना अच्छे टीचर्स प्रिपेयर हो सकते हैं, ना अच्छे टेस्ट बन सकते हैं, और ये टाइम ही नहीं है अभी प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने का। 5 months आर इनफ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर में बहुत कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जबकि उससे पहले कोर्सेज क्रैश कोर्स आते थे फेब मंथ में, फेब में मार्च में आया करते थे क्रैश कोर्सेज। अब ये जल्दी 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 ये इसलिए हो रहा है कि जो पहले लॉन्च कर देगा उसको ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन इससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। प्लीज़ अपना कीमती अटेम्प्ट मत खराब करें, ठीक है। ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वालों का कुछ नहीं जाएगा, अटेम्प्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो और जो सही तरीका है उससे प्रिपेयर करो, बिकॉज ईच अटेम्प्ट not only costs your attempt, it costs your precious working age, it costs a huge money, it costs a huge social pressure on you। बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात आपका सपना। प्लीज इसको वेस्ट मत जाने दो, किसी की भी बात में आकर के कुछ भी मत करो, अपनी अकल लगाओ। मैं भी जो आपको ये सब बता रहा हूं आप इनको सुनो, फिर अपनी अकल लगाओ, अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो रिजेक्ट कर देना। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बस इसको सुन के इस पे चलना ही चलना है। अगर आपको लगे ये सब सुन के कि हाँ ये काम का है, यही वो चीज़ें हैं जो मैं ढूंढ रहा था, कि जो मुझे कमियां लग रही थी मेरी प्रिपरेशन में लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी कि कहाँ कमियां हैं, अगर आपको लगे कि हाँ ये वो चीज़ें हैं तो ही इनको फॉलो करना, अदरवाइज यू आर फ्री टू फॉलो योर ओन स्ट्रेटेजी वट एवर यू वॉन्ट, राइट। बट प्लीज किसी के कहने पे मत आना, अपनी अकल लगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, consider the following statements. Mughal architecture is a blend of Indian, Persian, and Islamic style. Use of chhatri, dome-shaped pavilion, is a characteristic feature of Mughal architecture. See, question is about Mughal architecture. We all know that Mughal architecture is a blend of Indian, Persian, and Islamic style. This we all know very well. और ये हमें मुगल आर्किटेक्चर नाम से भी समझ में आ रहा है। देखो, इंडियन होगा ही होगा क्योंकि इंडिया में है, पर्शियन क्यों होगा क्योंकि वो उनका ओरिजिन है, इस्लामिक स्टाइल क्यों होगा क्योंकि वो उनका रिलीजन है। तो ये तीनों चीजें सही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस वजह से डेफिनेटली करेक्ट हो जाता है। नाउ द यूज ऑफ छतरी, डोम शेप्ड पवेलियन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अगर आपने कोई भी मुगल आर्किटेक्चर देखा हो, ताजमहल की फोटो देखी हो, तो वहां पे एक ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर बना होता है, ये इसी की बात कर रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस से हमारा ये भी क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट,
term blue economy. Word is blue and second is economy. Now let's see कि इसमें ये कैसे हो रहा है. देखो, blue means something which is blue in color, right? Something which is blue in color. And what is blue in color in economy? Let's see options में क्या दे रखा है. Fresh water resources, water, yes, it is blue. Sustainable use of ocean resources, it is also blue. Reduction of air pollution, no, this is not blue. Development of solar energy, no, this is also not something which is blue. So now we are left with two options. अब यहां पे फिर से हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे जो हमने पिछली क्वेश्चन में समझा कि यूपीएससी फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स. सेकंड, it should involve a greater good. Ocean is more broader than fresh water. And second, the greater good is sustainable use of what? Ocean water. Both are bigger. So the right answer will be B. Right? Let's come to next question. Which of the following best describes the term microfinance? Now here the term is, first is micro, another is finance. Micro means very small and finance means anything related to money. जैसे कि लोन्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, सेविंग अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गए, कोई फिक्स डिपॉजिट हो गया, कोई इस तरह से जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, यही सब फाइनेंस से रिलेटेड है. देखते हैं कि ऑप्शंस में ये चीजें कहां सेटिस्फाई हो रही हैं. लार्ज स्केल फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड टू डेवलपिंग कंट्रीज. लार्ज स्केल, गलत. Loans, saving, insurance and other financial services provided to small entrepreneurs and individuals. In this option, everything is satisfying this thing. But let's hold on. Let's see the other options. Financial services aimed at multinational corporations. क्या आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो वेरी स्मॉल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगी? नहीं. गवर्नमेंट ग्रांट्स टू प्रमोट रूरल टूरिज्म, टोटली रॉन्ग. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल. क्वेश्चन इज अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल. Kyoto Protocol is an international treaty aimed at reducing greenhouse gas emissions. Here, this thing we all have studied very, very, very well while we were preparing for environment. This option is totally correct. Next is, US is a signatory to Kyoto Protocol. Now in environment, this thing we also have studied that US is not a signatory of Kyoto Protocol. ठीक है, यूएस ने सिर्फ एक बार इस पे साइन किया था लेकिन इसे रेटिफाई कभी भी नहीं किया. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग. ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The term genetic engineering refers to. अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है. आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया सर ने, ये तो हमें पता ही है. बट बात ये नहीं है. बात ये है कि मैं आपको टेक्निक सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए हम इसको समझेंगे. वर्ड है फर्स्ट जेनेटिक.
Second is engineering. Genetic means something which is related to genes, which is related to something DNA, related to something cells, something related to biology, right? Engineering means उसमें कुछ 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 करना और engineering करके उसको और ज्यादा अच्छा बनाना, making it more better. ठीक है, अब देखते हैं कि ये चीजें कहां सेटिस्फाई हो रही हैं. Selective breeding of animals and plants for desired traits. Okay. Alteration of an organism's genetic material by adding, removing, or modifying DNA. Okay. Use of natural selection to improve crop yield. No, it doesn't relate. Use of fertilizer to enhance genetic characters in plants. It also doesn't apply. Now we are left with only two options. Selective breeding of animals, and second is adding, removing, modifying. This seems to be more engineered one. And about genetic, this word applies here. So the correct answer is B. Conclusion. Now the questions end here. Now the conclusion. Identify keyword and match them with familiar concepts. Use the context of the question to narrow down your choices. Eliminate options that don't fit the context or word association. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कीवर्ड, आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट, and try to match them. How they are getting matched, how these things are getting matched. ठीक है, बस फिनिश. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में विद another strategy. Till then, please go through the whole playlist. It will definitely help you. Please like, subscribe, and share it also. Thank you.